that CBSE has introduced assertion and reason type questions for this academic year, and the question number 19 and 20 is reserved for that. You are going to get 2 questions for that, and 4 reasons, and you will be getting here. For example, I will take up one example so that the things will be very clear. The question reads here, question आप देख सकते हो, statement says if the product of 2 number is 5780 and the HCF is 17, then the LCM is 340. The statement is reason is HCF is always a factor of LCM. Again I read the question, if the product of 2 number is 5780 and their HCF is 17, then their LCM is 340 and HCF is always factor of LCM. इस क्वेश्चन को वेरीफाई कैसे करना है या फिर क्या लिख सकते हैं? देखिए, HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM, ये तो हम जानते ही हैं. HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM, ये तो हम जानते ही हैं. सिर्फ एक काम करते हैं, वी विल चेक कि कहीं HCF इंटू LCM इसके बराबर आता है क्या. दिस इज करेक्ट, नो डाउट अबाउट दिस सेंटेंस. सिर्फ मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये HCF है 17 और LCM है कितना 340. तो HCF इंटू LCM अगर मैं करके देखता हूँ तो लेट अस सी व्हाट आई एम गोइंग टू गेट. 340 इंटू 17. So this is 17 into 0 is 0. 17 into 4 is 68. Carry 6. 17 3s are 51 plus 6 is how much? 57. So dear children, HCF into LCM is equal to 5780. And product of 2 number is already equal to 5780. So that means what? 2 things are confirmed. This assertion is confirmed and reason is confirmed. But the assertion is HCF is factor of LCM is not the reason for this. There is both assertion and reason are true, but assertion, reason is not the correct explanation of this. So what is the correct option? Both. What is the correct option? B. Both assertion A and reason R are true, and reason is not the correct explanation of assertion A, right? So the answer is this one. Both assertion A and reason R are true, and reason R is not the correct explanation of assertion A. Okay, fine. Now let us take up the second question. The second question is, if the HCF of 510 and 92 is 2, okay, LCM of 510 and 92 is 32,460. Then reason is HCF of AB and LCM of AB is equal to A into B. That means HCF of 2 numbers, LCM of 2 numbers is equal to product of 2 numbers. No doubt, beyond doubt, doubt हमको है नहीं कि reason तो correct है, reason तो correct है. अब हमको एक देखना पड़ेगा कि क्या HCF into LCM यहाँ पर सही है क्या इसके अंदर. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, HCF इंटू LCM, ये सारे स्टेप्स आपको वहाँ एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो. सिंस आई एम एक्सप्लेनिंग यू, आई एम राइटिंग ऑल द स्टेप्स, बट you need not write the same steps in your textbook. Directly you can do HCM into LCM should be equal to what? First number into second number. And in this case, is it true or false? That is what we have to check. Now you see, HCF is 510, okay, HCF is 2 and LCM is 32,460. So HCF is what? 2. So I will write here HCF is 2 and LCM is 32,460. So 32,460. Okay, so this if I multiply 2 0 ja 0, 2 6 are 12, carry 1, 2 4 are 8 plus 1 is how much? 9, 2 2 are 4 and 2 3 are 6. So product of HCF and LCM is how much? 64,920. Now we want the product of 2 numbers. You see 510 and 92. तो क्या इसको इंटू करूँ तो मुझे जवाब मिलेगा 510 इंटू 92. तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पर आई एम गोइंग टू गेट हियर व्हाट 2. ओके, सो 51 इंटू व्हाट इज इट 92
जस्ट आप यहाँ पर कर लीजिए 1 2 जार 2, 1 9 जार 9 प्लस 5 2 जार 10, 5 9 जार 45 प्लस 1 इज हाउ मच 46. तो 2 9 4 6 and of course needless to say this 0 also will be there. So 46,920 is not equal to 64,920. So what I can say is option A is false but reason R is true. Got my point? तो assertion सर यहाँ पर इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं? शॉर्टकट में बच्चों आप एक ही काम कर सकते हो यहाँ पर शॉर्टकट के अंदर, फटाफट इसको इंटू करना है, डायरेक्टली आपको इंटू करना पड़ेगा. रीज़न यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, रीज़न तो करेक्ट है, ये आप जानते हो, सिर्फ कहाँ पर प्रॉब्लम आता है. और अगर आप ये भी कर सकते हो तो देखिए, अच्छा यहाँ पर 3 920 तो आ रहा है, ये डिजिट के बाद भी आप निर्णय ले सकते हो कि अलग है, या फिर 2 मिनट के अंदर आपको करना तो पड़ेगा. इट विल टेक टाइम बट आई थिंक हार्डली हाफ मिनट का टाइम है. हाफ मिनट में आपको, यानी क्या है, पहला वाला वाक्य गलत है, दूसरा वाला वाक्य क्या है, सही है, यानी असर्शन इज रॉन्ग. तो असर्शन इज रॉन्ग मतलब कहाँ पर है, देखिए आप, assertion A is false, ये वाला है ना, assertion A is false but reason R is true. Okay, next question. Okay, अब देखो यहाँ पर, if the coordinates of the midpoints of the side AB and AC are 3 and 5, E is -3, then BC is equal to 20 units. और रीजन आपको बता रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट. इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर डी एंड ई. देखिए आप अगर यहाँ फिगर बनाओगे ए बी सी ट्रायंगल का, ये तुम्हारा ए, ये है तुम्हारा साइड ए, ये है तुम्हारा साइड बी और ये है तुम्हारा साइड सी, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 20 यूनिट्स. और D का कोऑर्डिनेट कितना दिया आपको, D का कोऑर्डिनेट है 3 और 5, तो D का कोऑर्डिनेट तुमको दिया है 3 और 5 और E का कोऑर्डिनेट तुमको दिया है हाउ मच, -3 और -3. तो DE कितना दिया है तुमको, इफ द कोऑर्डिनेट्स DE का वैल्यू अगर 10 आ जाता है तो हमारा सेंटेंस सही है. तो देखिए आप जानते हो कि डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो x2 - x1 होल स्क्वायर, डायरेक्टली मन में करोगे तो और बढ़िया रहेगा, अदरवाइज सिस्टमेटिकली भी अगर आपको करना है तो x1 y1 और ये क्या होगा x2 y2. तो x2 - x1 यानी प्लस ऑफ -3 माइनस ऑफ +3 दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, -6 का स्क्वायर होगा. सही है ना बच्चों, y2 - y1 यानी -3 - 5, -3 - 5 is how much, -8 whole square. So -6 square is how much, 36, 8 square is how much, so this will be equal to how much, 10 units. 10 units. So that means children, what he said is right, what he said is right. ये इसका हाफ है और इसको पैरेलल तो होता ही है. सर ये सारा स्टेप आपको एग्जाम में करना है कि हमको, नॉट एट ऑल. एग्जाम में हम क्या करेंगे सर, डायरेक्टली आप क्या करो, ओरली डिस्टेंस फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, x2 - x1 यानी -3 प्लस ऑफ -3 इज -6 होल स्क्वायर दैट इज 36. फिर -3 प्लस ऑफ -3 माइनस ऑफ +5 दैट्स -8 स्क्वायर 64. सो 36 + 64 इज 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10. सो द आंसर इज राइट. इतना सब आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैंने किया है, बट इसको आप सीधा से क्या कर सकते हो, ओरली आप इसको कर सकते हो. तो 100 स्क्वायर रूट इज हाउ मच, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10. तो यानी ऊपर वाला वाक्य भी सही है, नीचे वाला वाक्य भी सही है, यानी असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है. तो कौन सा आंसर है यहाँ पर आप बता सकते हैं, या ए में क्या है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए. यानी तुम जो कह रहे हो ये भी सही है, तुम जो कह रहे हो ये भी सही है और इसका जवाब ये है. सो दैट शुड बी योर आंसर. एग्जाम में आपको सिर्फ केवल आप इफ यू राइट दिस
20 के सामने ए लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पूरा सेंटेंस भी आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, उसके सामने ए। सर पूरा वाक्य में लिखना है क्या? नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। डोंट वेस्ट योर टाइम, एक्ट स्मार्टली एंड डू द थिंग्स ओरली। ये सब लिखना है क्या सर सारा? नॉट नेसेसरी एट ऑल। ओके फाइन। So that is the answer. The ratio in which the line segment 2 minus 3, 5, 6 internally divided by x axis is 1:2. Okay. Remember it is divided by what? X axis, and if it is divided by x axis then y coordinate क्या होगा? 0 होगा। यानी y coordinate क्या हो रहा है? 0 होना चाहिए और x coordinate x होगा। x कोऑर्डिनेट तो x ही होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होना चाहिए। तो क्या 0 होता है हम देखेंगे। तो ये पॉइंट्स क्या है? 2 - 3 और 5 6 है। तो इट इज़ 1:2 में डिवाइड हो रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि पूरा फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप क्या कह सकते हो इसको? आप देखिए पॉइंट्स क्या है? 2 और -3। यहाँ पर क्या है? 5 और 6 है। सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज व्हाट? 5 और 6। और इंटरनली ये पॉइंट मैं कहूँगा P, राइट? तो ये होगा x और ये क्या है? 0। सो दिस इज 1:2। 1:2 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। x की वैल्यू तो मैं नहीं जानता, मगर y 0 अगर हो जाएगा तो मेरा प्रॉब्लम सर सही है। तो आप जानते हो कि हम करते कैसे करते हैं? mx2 + nx1। इसको मैं लेता ही नहीं हूँ इस बार, क्योंकि x की वैल्यू आई डोंट नो। मगर 1 × 6 + 2 × -3 + 2 × -3 divided by 1 + 2, whatever it is, 1 + 2. So children, here 1 × 6 is 6 or 2 × -3 is how much? 2 × -3 is how much? So 6 - 6 is how much? 0. So children, what I can say is y coordinate is 0. y coordinate तुमको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। Hence I can say that yes, both are right. What is it? यहाँ पर assertion करेक्ट है, assertion करेक्ट है और रीजन भी सही है। तो both the sentences are right. तो what is the correct answer here? Both assertion A and reason are true. Reason R is the correct explanation of assertion A. तो इस तरह से आपको assertion और reason टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। Got my point? तो ये 4 क्वेश्चन जो मैंने अभी तक सॉल्व किए हैं वो आपके CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर बेसिक और स्टैंडर्ड को लेकर मैंने किए हैं। तो बेसिक का 19 और 20 नंबर का क्वेश्चन, स्टैंडर्ड का 19 और 20 नंबर का क्वेश्चन मैंने इसको लेके सॉल्व किया है। Am I clear? Am I clear? Fine.